نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیسن نمبر 7 میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے زیر کا بیان۔ الحمدللہ اس سے پہلے ہم زبر کے بارے میں بھی دیکھ چکے ہیں، دو زبر کے بارے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو آج ہم زیر کے بارے میں دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ زیر جو ہے یہ زبر کی طرح ہی ہوتی ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں کہ زبر جو ہے وہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے۔ یہ کبھی اوپر نہیں آئے گی، ہمیشہ نیچے ہی ہوگی حرف کے، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے زیر کو ادا کرتے وقت یہ دھیان رکھنا ہے کہ زیر کو معروف طریقے سے ادا کریں، مجہول نہ کریں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ زیر کو ہم نے زیادہ کھینچ کے ادا نہیں کرنا کہ اس کے اندر جو ہے یا مدہ کی آواز پیدا ہو جائے۔ کیسے ہوتی ہے وہ؟ جیسے حمزہ زیر ای ہے، ای حمزہ زیر ای، تو اگر ہم اس کو زیادہ کھینچ کے ادا کرتے ہیں تو پھر اس میں ساتھ یا لگ جاتی ہے، پھر کیا ہو جاتا ہے حمزہ زیر یا ای، ای ہم نے ایسے نہیں کرنا، زیادہ مقدار میں نہیں کرنا۔ ہم نے دیکھا تھا زبر زیر اور پیش جو ہے یہ 1 سیکنڈ کی مقدار میں ادا ہوتی ہیں، ہم نے اس سے کم اور زیادہ نہیں کرنا، اور نہ ہی اتنی جلدی ہم نے اس کو ادا کرنا ہے کہ اس کے اوپر جھٹکا محسوس ہو، جیسے حمزہ زیر حمزہ، حمزہ زیر حمزہ ای، ایسے بھی ہم نے نہیں کرنا۔ یہ حمزہ زیر ای ہے تو ہم اس کو ای ہی رہنے دیں گے، نہ تو اس کے ساتھ یا لگائیں گے اور نہ ہی آگے ہم اس کے ساتھ حمزہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس پر خصوصی توجہ دینی ہے انشاءاللہ۔ اور پھر اس میں یہ بھی اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے حروف شبہ مستعلیہ میں دیکھا تھا، شبہ مستعلیہ میں یہ چیز دیکھی تھی کہ را کے اوپر جب کوئی حرکت ہوتی ہے تو را پر ادا ہوتی ہے، جب را کے نیچے زیر آ جائے گی تو پھر را بریک ادا ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر، تو ہم نے را کو بریک ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ حروف تہجی کی پریکٹس آج ہم زیر کے ساتھ کریں گے۔ با زیر بی، با زیر بی، ہم نے زیر کے لیے کیا دیکھا تھا؟ جی کریں یاد، ہم نے دیکھا تھا حرکت ثلاثہ میں کہ زیر کو جب ہم نے ادا کرنا ہے تو ہونٹوں کو نیچے کی طرف جھکا کے ادا کرنا ہے۔ آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور پھر دیکھیں کہ آپ کے ہونٹ نیچے کی طرف جھک رہے ہیں۔ با زیر بی، بی، اب ہم نے اس کو بے نہیں کرنا اور ہم نے کیا نہیں کرنا، اور ہم نے یوں بھی نہیں کرنا بے، اور بی یا بھی نہیں اس کے ساتھ لگانی کیونکہ یا نہیں ہے، صرف واضح بی ہے، بی جھٹکا بھی نہیں دینا اور زیادہ بھی نہیں کرنا کہ یا ساتھ لگ جائے بازیر یا بی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، با ہے با ہی رہنے دیں گے، نہ حمزہ ساتھ لگائیں گے اور نہ یا ساتھ لگائیں گے۔ با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، سا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سا زیر سی ایسے نہیں کرنا، یہ سین بن جائے گا۔ پھر سا زیر سی، جیم زیر جی، ہا زیر ہی، خا زیر خی۔ خا کو ہم نے حروف مستعلیہ میں دیکھا تھا، تو آپ نے اب اچھے سے اس کو ذہن نشین کر لینا ہے کہ یہ پر ہے تو آپ نے اس کو پر ہی کرنا ہے۔ جتنے بھی حروف پر ادا ہونے والی ہیں آپ نے زیر کے ساتھ ان کو پر ہی ادا کرنا ہے، بریک نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن میں جہاں بھی حروف مستعلیہ آئیں گے ہم نے ان کو پر ہی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دال زیر دی، لال زیر ری، را زیر ری، زا زیر زی، زا میں سختی اور سیٹی، ٹھیک ہے۔ سین زیر سی، سین میں بھی سیٹی آئے گی، ٹھیک ہے۔ شین زیر شی، صاد زیر سی، صاد کو پر کریں، ہم نے اس کو بھی دیکھا کہ موٹے حروف میں سے ہے۔ ضاد زیر دی، ضاد کو بھی پر، طا زیر تی، اب ہم نے اس کو تی نہیں کرنا کیونکہ یہ طا ہے، طا، طا زیر تی۔ آگے دیکھیں، ظا زیر زی، ظا کو بھی پر، ظا زیر زی، عین زیر عی، غین زیر غی، غین بھی پر ہے۔ فا زیر فی، قا، قاف زیر کی، قاف کو پر کی بریک نہیں کرنا۔ دوسرا کاف دیکھیں، کاف زیر کی،
दोनों में फ़र्क देखिए। अब मैं मोटे वाला पढ़ती हूँ, की, क़ाफ़ ज़ेर की, काफ़ ज़ेर की। ठीक है, दोनों में आपने फ़र्क लाना है। लाम ज़ेर ली, मीम ज़ेर मी, नून ज़ेर नी, वाव ज़ेर वी, हा ज़ेर ही, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ई, या ज़ेर ये, या ज़ेर ये। ठीक है, इसमें आपने क्या करना है, हरूफ मुस्तानिया को पुर करना है और ज़ेर को अदा करते वक्त होंठों को नीचे की तरफ झुकाना है और क्या करना है कि बे ते से जे ऐसे नहीं करना। ठीक है, चलिए जी, अब हम मश्क में भी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा जी, चलिए हम इसके हिज्जे भी करेंगे और फिर आप देखें कि ज़ेर वाले हरफ के हिज्जे इस तरह होंगे जैसे हमज़ा ज़ेर ई, बा ज़ेर बी, ई बी, लाम ज़ेर ली, ई बी ली। ठीक है, और एक चीज़ का आपने और यहाँ पे ध्यान रखना है कि जैसे आइन है, हा है, सौद है, सीन है। ठीक है, इन चीज़ों का जो फ़र्क है ना, जो आप लोगों को बताया जा रहा है वो आप लोगों ने वाज़ेह करना है। ठीक है, वो फ़र्क आप जो है उसको अच्छे से उसकी जो फ़र्क है वो आपने करना है उसके अंदर। ठीक है, सौद है, सीन है, अगर हम नहीं इनमें सही अदायगी करेंगे तो समझ नहीं आएगी सौद अदा किया कि सीन अदा किया। ठीक है, इन चीज़ों का ख़ास ध्यान रखना है आपने। जिस कलमे के आखिरी हरफ के नीचे ज़ेर हो उसे स्टे की सूरत में साकिन करके पढ़ेंगे। जैसे इबिली पर वक्फ करते वक्त हम इबिल पढ़ेंगे। ठीक है, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी देख चुके हैं कि स्टे की सूरत में आखिरी हरफ को साकिन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, आखिरी हरफ को साकिन कर देंगे स्टे की सूरत में। ठीक है, चलें जी, शुरू करते हैं। हा ज़बर हा, हा के ऊपर अब ज़बर है तो ज़बर के लिए हमने हरकत सलासा में देखा था कि मुंह को सीधा खोल कर अदा करना है। हा ज़बर हा, बा ज़ेर बी, ज़ेर के लिए होंठों को नीचे की तरफ झुकाएं। हाबी, तो ज़बर तो को पुर और ज़बर है मुंह को सीधा खोल कर। हाबी तो पे बात में कलकला। क्यों कलकला किया हमने? क्योंकि हमने हरूफ कलकला में तो को भी देखा था कि इसको हिला के और झटके के साथ अदा करेंगे जब हम इस पे स्टे करेंगे, इस पे साकिन की अलामत जब आ जाएगी। ठीक है, वैसे नहीं हम इसको हिलाएंगे जब हम इसको ज़बर के साथ अदा करेंगे तब नहीं हिलाएंगे, जब हम इस पर झटका करेंगे तब हमने जब हम इसको साकिन करेंगे फिर हम झटके से इसको अदा करेंगे और क्या करेंगे, कलकला करेंगे। ठीक है, कलकला मतलब हिला के अदा करना। ठीक है, हाबी तो हाबी तो हाबी तो, लम ज़बर ला, बा ज़ेर बी, लबी, सा ज़बर सा, लबीसा, लबीस। बा को सा से बात में मिलाकर स्टे की सूरत में सा को साकिन कर देना, सा की ज़बर गिर जाती है फिर। अच्छा, अगर हम यहाँ पे सा में सीटी लेके आएंगे ना, ये सीन बन जाएगा। लबी सा, यहाँ पे सीन तो नहीं है तो सा, फिर हम क्यों सीन बनाएं, इसका आपने ध्यान रखना है। लबी सा, लबीस, हमजा ज़बर आ, बा ज़बर बा, अबा, ता ज़ेर ती, अबाती, अबत। बा को ता से बात में मिला के स्टे करेंगे हम, ता साकिन हो गया है, ज़ेर उसकी गिर गई है। रॉ ज़बर रॉ, अब रॉ क्या है यहाँ पे पुर अदा होगा कि ऊपर इसके ज़बर है। रॉ ज़बर रॉ, हा ज़ेर ही, ही होंठों को नीचे की तरफ, ही, रॉही, मीम ज़बर मा, रहीमा, रहीम। बाद में हा को मीम से मिला के स्टे करेंगे। अच्छा देखिए, हरूफ कलकला में हमने देखा कि उनको हिला के झटका दे के अदा करते हैं, बाकी इसके अलावा जितने भी हरूफ हम साकिन कर रहे हैं इनको हिलाएंगे नहीं। जैसे रहीमा है तो अब हम रहीमा हिमा ऐसे नहीं हिलाएंगे इसको। जो हिलते हैं हरूफ वो हमने देख लिए हैं कौन से हिला के अदा होते हैं। आगे देखें, सीन ज़बर सा, ख ज़ेर खी, साखी, र ज़बर र, सखीरा, सखीर, सखीर। रा को बरी क्योंकि रा साकिन हो रही है और उससे पहले ज़ेर है। सखीर, या ज़बर या, दाल ज़ेर दी, या दी, या ज़बर या दी या दी। यहाँ पे हम या को साकिन करेंगे
जब या को साकिन करेंगे ना तो ये कायदा हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपने इसको ज़्यादा मिकदार में अदा करना है। 2 हरकत। यदी, हमज़ा ज़बर आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, आज़ी, नून ज़बर ना, आज़ीना, आज़िन, ज़ाल को नून से मिलाएं। बा ज़बर बा, रा ज़ेर री, बारी, क़ाफ ज़बर क़ा, बारी क़ा, बारिक़ो, काफ पे कलकला। अब बारीक ऐसे नहीं करना, हिला के झटका आएगा इस पे, ठीक है। बारिको, ठीक है। शिन ज़बर श, रा ज़े री, रा को ब्रीक, शारी, बा ज़बर बा, शारी बा पे भी कलकला आएगा क्योंकि हरूफ कलकला में से है। अब स्टे होने लगे, बा साकिन होने लगे तो कलकला करेंगे, बा को हिला देंगे। शारी बा, शारिब, हा ज़बर हा, सीन ज़े सी, हसी, बा ज़बर बा, हसीबा, हसीब, बा पे कलकला। ख ज़बर ख, सीन ज़ेर सी, खासी, रा ज़बर रा, खासिर, खासिर, ख। अच्छा यहाँ पे देखें रा साकिन होगा, जब रा साकिन होगा उससे पहले ज़ेर है तो इसलिए फिर रा को हम बरीक अदा करेंगे क्योंकि रा साकिन हो रहा है स्टे की सूरत में और उससे पहले ज़ेर है। सॉरी, ख, ख ज़बर ख, सीन ज़ेर सी, खासी, रा ज़बर रा, खासिरा, खासिर, ख ज़बर ख, शीन ज़ेर शी, खाशी, या ज़बर या, खाशिया, खाशी। मैंने पहले भी बताया जब या साकिन होगी तो थोड़ा सा इसको मिकदार में ज़्यादा करेंगे, 2 हरकत, ठीक है। खाशी, रा ज़बर रा, रा को पुर, दाद ज़ेर दी, रादी, या ज़बर या, रादिया, रादी। गैन ज़बर गा, गैन को पुर, दाद ज़ेर दी, गादी, बा ज़बर बा, गादिबा, गादिब। अच्छा यहाँ पे देखें गैन और दाद को पुर करेंगे और बा पे बाद में कलकला करेंगे। सौद ज़बर सौ, मुँह को सीधा खोल के सौद को पुर, आइन ज़ेर ई, सई, क़ाफ ज़बर क़ा, सईक़ा, सईक़ो, काफ पे कलकला बाद में, ठीक है। चलिए जी आगे मैं हिज्जे नहीं करूँगी। तौफ़ीक़, तौफ़ीक़, सफ़ीहा, सफ़ीह। यहाँ पे हाँ जो है इस पे वक्फ करते वक्त हम हा नहीं बनाएंगे, सफ़ीह ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि ये दूसरी हा है। सफ़ीह, आलिमा, आलिम, यालिजा, यालिद, जिम पे भी कलकला, जिम को भी हिलाएंगे। आमिला, आमिल, फ़हिया, फ़ही, आहिदा, आहिद, दाल पे भी कलकला। या ईसा, या इस, इरमा, इरम। अब देखिए मीम को हम हिलाएंगे नहीं, जैसे हम हरूफ कलकला को हिलाते हैं। मीम पे हम यूँ नहीं करेंगे, इरम, इरम ऐसे नहीं, इरम, आराम से। इबिली, इबिल, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमने आज ज़ेर का बयान देखा है, तो ज़ेर के लिए आपने होंठों को नीचे की तरफ झुका के अदा करना है, इसको मडखोल नहीं करना। बा ज़ेर बी है तो इसको ना तो हमने या लगानी है इसके साथ बी हो जाए और ना ही हमने इसके साथ हमज़ा लगानी है कि बी हो जाए, ठीक है। तो झटका भी नहीं देना और ज़्यादा मिकदार में भी अदा नहीं करना, बाज़र बी 1 सेकंड की मिकदार में इंशाल्लाह। और हरूफ मुस्तालिया ज़बर के साथ हों, ज़ेर के साथ हों, पेश के साथ हों, उनको हमने पुर ही करना है। रा के ऊपर जब हरकत होगी तो पुर, रा के नीचे जब हरकत होगी तो बरीक, ठीक है। और फिर मश्क में हमने स्टे की सूरत में देखा है कि जब हमने स्टे करना होता है तो वहाँ पे फिर हम आखिर वाले हरफ को साकिन कर देते हैं खुद से, उसकी ज़बर ज़ेर पेश गिरा देते हैं, खुद से उस पर साकिन लगा देते हैं, तो फिर पीछे वाले को उसके साथ मिला के अदा करते हैं। जैसे हमने देखा है हाबितो, हाबितो, बा तो को साकिन बा के साथ मिलाकर, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम देखेंगे आगे ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, लेकिन आपने इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है इंशाल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।